کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں اپنی بھتیجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس کے لیے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حالات اتنے پر اسرار، اتنے عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ تم یقین نہ کرو گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے۔ باخدا مجھ جیسا احمق انسان روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا۔ میری پیاری لڑکی کا اس حسین بلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم تک نہ مار سکا۔ کاش کہ مجھے احساس ہو جاتا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری کارمیلا ویمپائر، ایپیسوڈ نمبر 6۔ بات ختم کرنے کے بعد مادام لا فولٹن نے ایک اور کہکا لگایا، لیکن ان کے کہکوں میں کوئی جان نہ تھی۔ مادام کی آواز اور لہجہ اس کے دلی اضطراب اور تشویش کی چغلی کھا رہا تھا۔ مادام پیریڈون منہ سے کچھ نہ بولی اور خاموش اپنے ہونٹ چباتی کچھ سوچتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مادام لا فولٹن نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، کارمیلا کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے جو لیمو کا درخت ہے وہ اسیب زدہ ہے۔ مارٹن گوالے نے کئی مرتبہ صبح منہ اندھیرے اس مقام پر ایک پر اسرار عورت کو ٹہلتے دیکھا ہے۔ مادام پیریڈون چپ چاپ باتیں سنتی رہی، آخر نہ رہ سکیں۔ مادام لا فولٹن کو ڈانٹتے ہوئے بولی، مارٹن کی بکواس لارا کو سنانے سے کیا فائدہ، فضول اور ڈرے گی۔ مادام لا فولٹن خاموش ہو کر باہر جانے لگی تو مادام پیریڈون نے پکار کر کہا، کارمیلا سے اسیب زدہ درخت کا ذکر نہ کرنا، اس کے کمرے سے وہ درخت نظر آتا ہے۔ کارمیلا لارا سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے، خواہ مخواہ ڈر جائے گی۔ اتنے برس بعد مجھے ٹھیک ٹھاک یاد نہیں کہ بھیانک خواب کی دہشت سے کس طرح نجات ملی، تاہم اتنی بات یقینی ہے، کچھ عرصے بعد میں اپنے کمرے میں پھر تنہا سونے لگی۔ ایک دن کارمیلا کی نظر اتفاقاً چینی کے ایک گلدان پر پڑ گئی۔ اس میں جنگلی لہسن کے پھولوں کا ہار پڑا تھا جو شعبدے باز نے مجھے بطور تحفہ دیا تھا اور میں اسے گلدان میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ کارمیلا نے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لارا یہ ہار لو، رات سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آتے اور نہ کوئی روک لگتا ہے۔ بدروحیں اس کی بو سے نفرت کرتی ہیں اور یہ جس کے پاس ہو اس کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتی۔ میرے پاس بھی اس طرح کا ایک ہار ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے سرہانے رکھ کر سوتی ہوں، خوب گہری نیند آتی ہے۔ کارمیلا کی سنجیدگی نے میرے دل میں اس ہار کے لیے عقیدت سی پیدا کر دی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ہار لے لیا۔ رات اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر لیٹتے ہی غنودگی چھا گئی اور میں خلاف معمول صبح تک مزے سے گہری نیند سوتی رہی۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے، صبح بیدار ہوئی تو سارا جسم ٹوٹ رہا تھا، ایک بے نام سی تھکن اور کسل مندی طاری تھی، حالانکہ نیند بھر کے سونے کا خوشگوار ہونا چاہیے تھا۔ وہ سارا دن عجیب بے مزگی اور اداسی میں گزرا۔ اگلی رات بھی خوب گہری نیند آئی، لیکن صبح طبیعت اسی طرح بھاری تھی اور اس کے پھولوں کا ہار اپنے پاس رکھنے سے واقعی خوب نیند آتی تھی، مگر یہ بات کوئی روگ نہیں لگتا، بالکل غلط تھی۔ راتوں کو مزے سے گہری نیند سونے سے میرا جسم روز بروز گھلتا جا رہا تھا اور نکاہت و درماندگی بڑھتی جاتی تھی۔ چند دن میں میری شخصیت ہی بدل کر رہ گئی۔ میں خود کو ایک بدلی سی اجنبی لڑکی محسوس کرنے لگی اور یہ احساس طاری رہنے لگا کہ آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہی ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس طرح کے بھیانک خیال سے ڈرایا سے آنے کی بجائے مجھے ایک عجیب سی طمانینت اور سرخوشی کا احساس ہوتا۔ والد ابھی تک میری اس پر اسرار بیماری سے بے خبر تھے۔ ایک دن آمنا سامنا ہو گیا تو میری ہلدی کی طرح زرد رنگت اور اندر دھنسی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک گئے اور بولے،
تمہیں بخار تو نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے اور میں ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ میرا جواب یک لحاظ سے درست بھی تھا۔ مجھے کبھی درد کی شکایت ہوئی نہ جسمانی عارضہ لاحق ہوا، پھر میں کیوں کر کسی بیماری یا تکلیف کی شکایت کرتی؟ میرا روگ جسمانی نہیں روحانی تھا۔ اس روگ میں مبتلا ہوئے مجھے 3 ہفتے ہو رہے تھے، لیکن میری ضدی طبیعت والد کو کچھ بتانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ میں سچ مچ اپنے برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھی تھی۔ لگتا تھا کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کند اور مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ کارمیلا بھی روز ڈراؤنے اور پریشان کن خوابوں کی شکایت کرتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں رات جو ڈراؤنا خواب دیکھتی، صبح کارمیلا ہو بہو ویسا ہی اپنا خواب سنانے لگتی۔ کاش کہ میری عقل پر پتھر نہ پڑتے تو میری تباہی اور بربادی کا اسی وقت علاج ہو جاتا۔ اب میں اپنے ایک ایسے ڈراؤنے اور بھیانک خواب کا تذکرہ کرنے چلی ہوں جو ایک بالکل نئی اور حیرت انگیز دریافت کا سبب بنا۔ ایک رات سوتے میں اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، تمہاری ماں کہتی ہے اپنے قاتل سے ہوشیار رہو۔ عین اسی لمحے کمرے میں روشنی کا ایک کوندا لپکا اور میں نے دیکھا کارمیلا میری پائنتی کھڑی ہے۔ اس نے شب خوابی کا سفید لبادہ پہن رکھا ہے اور ٹھوڑی سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں پوری قوت سے چیخ اٹھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ کارمیلا بیچاری کو کسی نے قتل کر ڈالا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بستر سے کود کر میں دروازے کی طرف لپکی، تیزی سے چٹکنی کھولی اور مدد مدد چلاتی ہوئی راہداری میں پہنچ گئی۔ میری چیخو پکار سن کر مادام پیریڈون اور مادام لا فولٹن بھی گھبرا کر ننگے پاؤں ننگے سر اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی۔ انہیں سامنے پا کر کسی قدر حوصلہ ہوا، پھر رک رک کر ٹوٹتے ہوئے الفاظ میں واقعہ سنایا۔ مادام پیریڈون بولی، جلدی کرو، نہ جانے بیچاری پر کیا گزری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کارمیلا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مادام لا فولٹن اور میں بھی اس کے پیچھے لپکی۔ دروازے پر پہنچ کر مادام پیریڈون نے دستک دیتے ہوئے کارمیلا کو آواز دی، کارمیلا، کارمیلا، دروازہ کھولو۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے اپنی پوری قوت سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر خاموشی کا طلسم نہ ٹوٹا۔ چند لمحے ہم منتظر رہے اور پھر تینوں ایک ساتھ دردرانے، کوار پیٹنے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ قیامت کا شور بپا ہوا کہ مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، مگر وہاں جواب میں ایک خاموشی تھی۔ ہمیں دروازہ کوٹتے اور چلاتے خاصی دیر ہو گئی اور کسی نے دروازہ نہ کھولا تو ہم گھبرا گئے اور مجھے 100% یقین ہو گیا کارمیلا قتل کر دی گئی۔ والد قلعے کے دوسرے حصے میں سوتے تھے، ان تک شور کی آوازیں نہ پہنچ سکتی تھیں۔ انہیں مطلع کرنے کے لیے ہمیں خود وہاں جانا پڑتا، لیکن رات کے اس پہر ہمت نہ پڑی۔ آخر آپس میں صلاح مشورہ کر کے طے کیا کہ انہیں زحمت دینے کی بجائے قلعے کے ملازموں کو طلب کیا جائے اور دروازے کا تالا توڑ دیں۔ کارمیلا کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر رسی سے بندھی ہوئی گھنٹی بجائی، جس کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ چند ثانیے کے اندر اندر 3-4 ملازم آنکھیں ملتے ہوئے آن موجود ہوئے۔ تالے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور آوازیں دی، لیکن اس بار بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر میں نے ملازموں کو تالا توڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے چند منٹ میں اسے توڑ کر پری پھینک دیا۔ ملازموں کو اندر ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا، جانے کارمیلا کس حال میں ہوتی۔ ہم نے انہیں باہر ہی چلتا کیا اور خود شمع لے کر آگے بڑھے۔ اندر تاریکی تھی۔ دہلیز پر رک کر پھر 2-3 آوازیں دی، کارمیلا، کارمیلا، مگر صدائے برخاست ہماری آوازیں فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئیں۔ شمع کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے کمرے کے وسط میں جا کھڑے ہوئے۔ کسی افراتفری یا تشدد کے کہیں کوئی آثار نہ تھے۔ کمرے کی ہر شے جوں کی توں اپنی جگہ پر تھی، بالکل ویسے ہی جیسے شام کے وقت میں نے دیکھی تھی۔
दिल को कदरे इत्मीनान हुआ कि कारमिला जिंदा है, कत्ल नहीं हुई, मगर वो चली कहाँ गई। कारमिला का कमरे में कहीं नामो निशान न था। मादाम पेरिडोर का कहना था कि दरवाजे पर शोर और हंगामे की आवाज़ सुनकर कारमिला डर गई है और किसी अलमारी, सोफे, मेज़, पर्दों के पीछे या गुसल खाने में छुपी हुई है। लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। हमने कमरे का एक एक गोशा छान मारा, मुख्तलिफ वक्फों से बार बार उसका नाम लेकर आवाज़ें दी। गुसल खाना भी खूब अच्छी तरह देखा भाला, लेकिन कारमिला की सूरत कहीं नजर ना आई। मैं रुहासी हो गई और उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए गड़गड़ाई, कारमिला, प्यारी कारमिला, ये आंख मचोली ख़त्म करो, हम तुम्हें नहीं ढूंढ सकते, कहाँ छुप गई हो, बाहर निकल आओ। अंदर कोई होता तो जवाब मिलता। कमरे की सारी खिड़कियां अंदर से बंद थीं और उनमें चटखनियां लगी हुई थी। रोशनदान खासे ऊंचे थे और उन तक कारमिला की रसाई किसी तरह मुमकिन ना थी। बहुत दिमाग लड़ाया, कुछ समझ में ना आया। आखिर ये मुअम्मा क्या है, कारमिला कहाँ गायब हो गई। फिर ख्याल आया कि उसे किसी पुरानी खुफिया सुरंग का सुराग तो नहीं मिल गया। मैंने वालिद से सुन रखा था कि किले में बहुत सी खुफिया सुरंगें हैं, लेकिन उनकी निशानदही या महल्ले वकू मालूम करना मुमकिन नहीं और वो अरसे से बंद पड़ी हैं। आधी रात के वक़्त जब कारमिला के मिलने की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं तो हम थक कर चूर हो गए। तो मैं मादाम पेरिडोन के साथ उस कमरे में चली आई और बाकी मांदा रात वहीं बसर की। सुबह भी कारमिला कहीं नजर ना आई, चारों तरफ ढूंढिया पड़ गई। वालिद नौकरों की एक जमात लेकर उसे गिरदो नवा के इलाके में तलाश करने निकल खड़े हुए। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, लोगों से दरियाफत किया, किले के करीब बहने वाली नदी खंगाल डाली, लेकिन गुमशुदा का कोई सुराग ना पा सके। वालिद परेशान थे और सोच सोच कर हलकान हो रहे थे। कारमिला की माँ वापस आ गई तो उसे क्या जवाब देंगे। सुबह इस अफरा तफरी और परेशानी की नज़र हो गई। सूरज सर पर आर पहुंचा, लेकिन कारमिला की गुमशुदगी का मुअम्मा हल ना हुआ। 1 बजे के करीब में टहलती हुई दोबारा कारमिला के कमरे के बाहर जा निकली। दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो हैरत से आंखें फैल गईं। कारमिला मेरे सामने संगार मेज के पास खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। चंद लम्हे दहलीज में हैरान और शशतर खड़ी से बेयकीनी की हालत में घूरती रही और फिर दौड़ कर उससे लिपट गई। कारमिला, अच्छी कारमिला, तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी? कब और कैसे वापस आई? हम रात से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। पिछली रात भी अजीबो गरीब रात थी। खुदा के लिए पहेलियां ना भिजवाओ कारमिला, तफसील से बताओ क्या वाकया पेश आया। कारमिला चंद सानिये खामोश खड़ी कुछ सोचती रही, फिर बोली, मैं खुद किसी नतीजे पर पहुंचने से कासर हूँ। कुछ समझ में नहीं आता माजरा क्या है। अब तुम्हें क्या बताऊं। रात हस्बे मामूल 2 बजे सोने के लिए लेटी। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे। रात बड़े सुकून और आराम से कटी। किसी डरावने ख्वाब ने परेशान ना किया। लेकिन हैरत है, सुबह आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर के बजाय ड्रेसिंग रूम के बड़े सोफे पर पड़ी थी। उठकर दरवाजे देखे तो चटखनियाँ लगी हुई थी। खुदा जाने बंद दरवाज़ों के बीच में से गुजरकर अंदर कैसे पहुंच गई। किसी ने उठाकर सोफे पर डाल दिया हो, यह भी मुमकिन नज़र नहीं आता। मेरी नींद बड़ी कच्ची है, हल्की सी आहट पर आंख खुल जाती है। हम अभी बातें कर रहे थे कि वालिद मादाम पेरिडोन और मादाम लाफोल्टन और नौकरों की एक जमात के साथ आ पहुंचे। आते ही सब ने कारमिला को घेरे में ले लिया और उसकी खैरियत दरियाफत करने लगे। कारमिला का एक ही जवाब था, मैं रात अपने बिस्तर पर सोई थी। सुबह हुई तो खुद को ड्रेसिंग रूम के सोफे पर पड़े पाया। मुझे कुछ खबर नहीं मैं ख्वाबगाह से ड्रेसिंग रूम तक कैसे पहुंची। वालिद उसकी बात सुनकर सोच में डूब गए। देर तक सर झुकाए कमरे में टहलते रहे। फिर अचानक सर उठाया, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते कारमिला के सोफे पर बैठ गए और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ी शफकत से बोले, बेटी माफ़ करना, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। मैं तुमसे चंद सवाल करूँगा, शायद उससे तुम्हारी गुमशुदगी की उकदा कुशाई हो सके। ज़रूर, जो सवाल मर्जी है पूछिए, लेकिन मेरी कहानी बड़ी मुख्तसर और उलझी हुई है। मुझे हकीकतन किसी बात की खबर नहीं। कारमिला हथौड़ी पर ठोरी रखे किसी कदर आगे की तरफ झुकी बैठी थी।
कभी कभी किन अखियों से वालिद की तरफ देख लेती। मादाम पेरिडॉन और दम सादे हमतन गोश थीं। वालिद ने खंकार कर अपना गला साफ किया और बोले, क्या पहले भी कभी तुम्हें नींद में चलने की शिकायत लाहक हुई? बहुत अरसा पहले जब मैं छोटी सी थी, लेकिन होश संभालने के बाद ऐसी कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। खूब। वालिद ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। इसका मतलब है तुम्हें नींद में चलने का आर्जा लाहक रहा है। जी हाँ, मेरी बूढ़ी नर्स बचपन की बातें सुनाते हुए अक्सर उस आरसे का जिक्र करती हैं। कार्मिला की बात सुनकर वालिद के चेहरे पर बशाशत की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए सोफे से उठ खड़े हुए और सर हिलाकर बोले, उकदा हल हो गया। सुनो, तुम्हारी गुमशुदगी का वाकया यकीनन कुछ इस तरह पेश आया है। तुमने बिस्तर से उठकर नींद के आलम में दरवाज़ा खोला, उसे बाहर से मुतकफल किया और चाबी ताले में छोड़ने की बजाय साथ लेती गई। फिर किले की निचली या बलाई मंजिल के किसी कमरे में पड़कर सो रही। यहाँ 20 एक जैसे कमरे हैं और उन सब की अच्छी तरह तलाशी लेने के लिए पूरे 7 दिन दरकार हैं। तो मेरा मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, कार्मिला ने होले से असबात में सर हिलाया। वालिद कुछ और कहना चाहते थे कि मैं दोबारा बोल उठी, लेकिन अब्बा, कार्मिला के सोफे पर सोने की तजी क्यों कर हुई? रात सोफा बिल्कुल खाली था और मैं सस्ताने के लिए 2 बार इस पर बैठी। उस वक़्त कार्मिला सोफे पर ना थी, बाद में कैसे आ गई? सबर लड़की, बताता हूँ। लोग उसे तलाश करके चले गए तो कार्मिला नींद में चलती हुई दोबारा उस कमरे में आई और बजाय बिस्तर पर सोने के सोफे पर ही दराज हो गई। ये है सारा मामला। अपनी बात खत्म करके वालिद ने जोरदार कहका लगाया और बोले, क्या ही अच्छा होता सारे पुर इसरार और उलझे हुए वाकयात और गुत्थियां इसी तरह चुटकी बजाते में सुलझाई जा सकती। शाम के वक़्त मादाम ला फोल्टर ने बताया वो आइंदा कार्मिला के कमरे में सोया करेगी ताकि उसकी निगरानी होती रहे और वो नींद के आलम में दोबारा मटर गश्त करने अपने कमरे से ना निकल खड़ी हो। वालिद की भी यही ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि दोबारा इस तरह के नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। कार्मिला को पता चला तो उसने बड़ी सख्ती से तजवीज़ रद्द कर दी। वो किसी तरह मादाम ला फोल्टन को अपने साथ कमरे में सुलाने पर रजामंद ना हुई तो वालिद ने एक नौकर की ड्यूटी लगा दी कि वो रात के वक़्त कार्मिला की ख्वाबगाह के बाहर दरवाजे के साथ अपनी चारपाई बिछाकर सोया करे। मेरी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी। बज़ाहिर कोई बीमारी या तकलीफ़ ना थी, उसके बावजूद मैं खुद को हमेशा थकी थकी सी और नढाल महसूस करती। चेहरे और हाथ पाँव की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ती जा रही थी। मालूम होता था कि जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मेरी ज़िद और हट दर्मी मुलाहजा हो और उस सेहत के बावजूद वालिद से कभी उसका तज़किरा ना किया। मैं डरती थी कि उन्हें खबर हो तो डॉक्टरों और दवाओं का एक लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा, जिससे मुझे बेहद नफरत थी। मगर वालिद की तेज़ और उकाबी नज़रों से मेरी कैफियत ज़्यादा दिनों तक छुपी ना रह सकी। एक दिन जब मेरे वहमो गुमान में भी ना था, उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग को बुला भेजा और वो अगले दिन सुबह सवेरे आ पहुंचा। मादाम पेरिडॉन को साथ लेकर मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वह बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही बड़ी शफकत से बोला, आओ लारा बेटी, तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब रहती है। मैं एक तरफ बैठ गई और तफसील से अपना हाल सुनाया। मेरा बयान सुनने के बाद उसके चेहरे पर फैली संजीदगी कुछ और गहरी हो गई। वो कुर्सी से उठा और टहलने लगा। उसकी ऐनक के शीशे के पीछे से झांकती हुई बड़ी बड़ी रोशन आंखों में तशवीशो अज़तराब के बेहानक साए लहरा रहे थे। वो मुंह से कुछ ना बोला और मैं भी खामोश बैठी उसकी हरकत का जायज़ा लेती रही। फिर वो टहलते टहलते रुका और मादाम पेरिडॉन से कहा कि वो मेरे वालिद को बुला लाएं। वालिद अपने कमरे में थे। डॉक्टर का पैगाम मिलते ही फौरन पहुंच गए। उन्हें मुस्कुराता हुआ दरवाजे में कदम रखा और ज़ोर से पुकारे, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर संजीदा और खामोश रहा। वालिद हैरत से उसका मुंह तकने लगे। उन ऑफ हो गया था। सारी बशाशत और शगुफ्तगी जाती रही। चंद मिनट बाद डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और उन्हें ड्राइंग रूम के दूसरे कोने में ले गया और फिर वो बातें छिड़ गई। वो नहायत मध्यम आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। मादाम पेरिडॉन में कोशिश के बावजूद एक लफ्ज़ भी ना सुन सके। अचानक वालिद ने अब बुलंद आवाज़ से पुकारा, लारा बेटी ज़रा इधर आना।
बे इख्तियार मेरे दिल की धड़कन तेज हुई और रगो वपे में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। ना जाने डॉक्टर क्या फैसला सुनाने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके पास पहुंची। वालिद ने हाथ बढ़ाकर मेरा बाजू थाम लिया और खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया। उनकी नज़रें डॉक्टर के चेहरे पर जमी हुई थी और वो तशवीश भरे लहजे में कह रहे थे, अजीब बात है, मेरी तो अकल काम नहीं करती, क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और आहिस्तगी से बोले, बेटी डॉक्टर तुमसे कुछ पूछना चाहता है, अच्छी तरह याद करके ठीक ठीक जवाब देना। मैंने असबात में सर हिलाया और डॉक्टर की तरफ मतवज्जा हो गई। उसने पूछा, पहली मर्तबा जब तुमने डरावना ख्वाब देखा और गर्दन पर 2 सुइयां सी चुभती हुई महसूस की थी, क्या उस जगह अब भी दर्द है? जी नहीं। अच्छा, उंगली रखकर अपने वालिद को वो मकाम बताओ जहां दर्द और चुभन महसूस हुई थी। गले से ज़रा नीचे, यहाँ ठीक इस जगह। मैंने टटोलते हुए गर्दन पर एक जगह उंगली रख दी। गर्दन का ये हिस्सा कमीज के नीचे छुपा हुआ था। वालिद ने मेरा कॉलर ज़रा नीचे सरकाया और गर्दन पर नज़र डाली, लेकिन अगले ही लम्हे यूं तड़प कर पीछे हटे जैसे किसी बिच्छू ने अचानक डंग मार दिया हो। उनकी ये कैफियत सिर्फ चंद सानिये कायम रही। जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया और किसी कदर ठहरे हुए लहजे में बोले, खुदा रहम करे, तुम ठीक कह रहे थे डॉक्टर, अब क्या होगा? डॉक्टर के जवाब देने से पहले मैं फरते खौफ से एक सवालिया निशान बन गई। अब बताइए ना, मेरी गर्दन पर क्या है? वालिद खामोश रहे। डॉक्टर ने आगे बढ़कर मेरा कंधा थपथपाया और बड़ी शफकत से कहा, अरे कुछ नहीं बेटी, एक छोटा सा नीलगू निशान है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और फिर उसने मादाम पेरिडोन को करीब बुलाते हुए हदायत की कि लारा की तबीयत ठीक नहीं, इसकी देखभाल के लिए ज़रूरी हदायत बाद में दूंगा। इस वक्त ये ज़हन नशीन कर लो कि दिन रात के किसी लम्हे लारा को तन्हा नहीं छोड़ना, तुम्हें हर वक्त साए की तरह इसके साथ रहना है। मादाम की मोहब्बत और शफकत से मुझे पूरी उम्मीद है वो हमें मायूस ना करेगी। वालिद ने बात आगे बढ़ाई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लारा बेटी, तुम भी डॉक्टर की इस हदायत पर सख्ती से अमल करते हुए मादाम को हर वक्त अपने साथ रखना। ये कहकर वो डॉक्टर के साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करते बाहर की तरफ चल दिए। मैंने सुना कि वो कह रहे थे, तुम्हें एक और मरीज भी दिखाना था और उसकी भी बिल्कुल यही कैफियत है। लारा और वो दोनों हम उम्र हैं और कुछ अरसे से हमारी मेहमान हैं। इस वक्त तुम्हें जाने की जल्दी है और वो दोपहर से पहले बेदार नहीं होती। खैर, शाम को सही वापसी पर इधर आ जाना, रात का खाना इकट्ठे खाएंगे। डॉक्टर ने दावत कबूल कर ली, लेकिन वो शाम तक वापस ना आया। डॉक्टर को रुखसत करने के बाद वालिद देर तक बाहर लॉन में टहलते रहे। अंदर आए तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। उसे मेरी तरफ फेंकते हुए बोले, जनरल डारोफ का खत है, वो आज शाम या कल किसी वक्त यहाँ पहुँच रहा है। वालिद की आवाज़ बेहद सपाट थी। मेहमानों की आमद पर उन्हें हमेशा खुशी होती थी। जनरल डारोफ उनका गहरा दोस्त था, जिसकी आमद की खबर सुनकर वो खुशी से खिल उठते थे। लेकिन उस दिन उनकी आवाज़ और लहजे में गर्म जोशी मनकूद थी। चेहरे पर फैली हुई संजीदगी उनकी दिल्ली अस्तराब की गमाज थी। मैंने डॉक्टर और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में पूछा तो झंझलाकर बोले, तंग ना करो बेटा, वो ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ इस कदर रुखाई से पेश आए थे। मैं भारी दिल के साथ पीछे हट गई। उन्होंने चेहरे के बदलते हुए तासरात से मेरी अंदरूनी कैफियत भांप ली। उन्होंने प्यार से के अंदाज में कहा, बेटी ज़रा सब्र से काम लो, 1-2 रोज़ में सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा रुके और बुलंद आवाज़ में बोले, अरे असल बात तो बताना भूल ही गया, 12 बजे कारण स्टेन जाना है, फादर विलियम से ज़रूरी मशवरा करना है, तुम भी तैयार रहना। कारमिला बेदार होने के बाद मादाम लाफोर्टन के साथ बाद में आ जाएगी, फिर सब मिलकर वहाँ पिकनिक मनाएंगे। ठीक 12 बजे घोड़ा गाड़ी आ गई और हम कारण स्टीन की तरफ चल खड़े हुए। रास्ते में एक मोड़ पर अचानक जनरल डारोफ से मिडभीड़ हो गई, जो घोड़े पर सवार एक खादम के हमरा किले की तरफ आ रहा था। वालिद ने उसे देखकर बग्गी रुकवा ली और नीचे उतरकर
उससे बगलगीर हुए। रस्मी अलैक व सलैक और मजाज पुरसी के बाद वालिद ने कहा, तुम किले में चलकर आराम करो, मैं ज़रा कार्नस्टीन से होकर आता हूँ। कार्नस्टीन के जिक्र पर जनरल की आंखें चमक उठीं और उसने खास अंदाज में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जनरल घोड़े से उतरकर बग्गी में आ बैठा और हम दोबारा आगे की तरफ रवाना हो गए। जनरल के चेहरे पर खंडी हुई जर्दी और गहरी शिकनों से उसकी ज़हनी कशमकश नुमाया थी। बरसों का मरीज नजर आने लगा था। तेज और चमकीली आंखों की रोशनी मादूम हो गई थी। शायद भतीजी की मौत ने उसकी सारी शादाबियां छीन ली थी। वालिद ने मुनासिब अल्फाज में ताज़ियत की और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर अचानक सर उठाया और गमज़दा आवाज़ में कहने लगा, मैं अजीबोगरीब आफताब का शिकार हो चुका हूँ। बच्ची की पुरइसरार बीमारी और मौत ने मुझे बहुत सी नई बातें सिखा दी हैं। मैं जब तक उसकी जवां मौत का इंतकाम ना ले लूँ चैन से ना बैठूंगा। कैसा इंतकाम? वालिद ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। सब कुछ बयान करता हूँ, लेकिन पहले ये बताऊँ कार्नस्टीन का किला कितनी दूर है? 6 मील। अब वहाँ वहशतनाक खंडर के सिवा कुछ नहीं।